to us to share our views and what we want to do by posting ourselves as posing ourselves or our candidature for the vice president. Let me introduce myself first of all. I hail from a very small village in Haryana, hail from a very humble background. I graduated from DAV College for Karnal and did my master's in English in the year 1997 from Kurukshetra University. Then I served as a professor in DAV College where I was used to study. Subsequently, as destiny would have it, I did my LLB from Kurukshetra University and have the privilege to join this profession, which is my passion now. I started my practice in district courts, Karnal. For 3 years, I was there. And then some very unwanted situations brought me here in this and give me opportunity to become the member of this bar, this esteemed bar. Working here, not only a privilege, but it has it has helped me to grow as an individual, as a professional. I had the opportunity to serve as an executive member in 2009, and now I am here requesting you all to give me opportunity to serve this august bar as a vice president. I have since I am a first generation lawyer and I can feel the pain and the challenges every first generation lawyer face while entering the field. So I have some I works in my mind I wish to do if I am given opportunity. The first and foremost thing which every lawyer, all of us are aspiring is that physical opening of the court should start very soon. It should resume, but it can't be done in a manner that everything is hodgepodge. It has to be done in a phased manner. In a we have to plan out. We have to chalk out a plan, and before opening of the courts, let us decide to open all bar rooms after proper sanitization with restrictive entry of advocates only. That would be one step. Then we can ensure we can ask the court judges to start the hearing of physical hearing of the court. The second most important thing in my mind is that I have faced a lot being a first generation lawyer. I'm here for more than 16 years member of this bar, but due to lack of proper sitting, our most productive hours are ruined here. We are not able to focus on our profession. We can't use that time for constructive work. So it would be my endeavor that we could get allotted some land for lawyers chamber, having the facilities on the same land, having the facility of multi level parking also. The another thing which is in my mind is that since the technology has changed everything now, and this is the need of the art, we can't deny that this technology, it has proved as a boon in these hard times when we were not able to work physically. This virtual hearings have given us a support on which we are surviving. So I would like to set up a digital platform with all kind of facilities where young lawyers, every lawyer who, every bar member, they can conduct their vcs. As we have set up mediation centers, we have set up lok adalats, why can't we set up this such kind of platform where Thank we you, ma'am. can work Thank you, ma'am. in proper infrastructure, where we can work properly, work efficiently, so that our work may not suffer. The another thing in my mind is that we are having only one consultation room that is on the first floor. That is not that room is not sufficient to cater our needs. Sure, ma'am. Ma'am, we'll have to come back to you for the balance issues. Now, Please. floor is with Hriday sir. Sir, am I audible? Absolutely, sir. I would request because my brother Vikas Malik, he is the sitting vice president. I would like that he gives us his introduction first, then I'll follow. As per Vikas sir.
Thank you, Rahi Bhai, and thank you, Imran. Sure, sir. Respected members present on panel, seniors member of the bar, and my wonderful colleagues, I am presenting myself against for the post of Vice President of this August bar. I have delivered almost everything I have promised. When I joined as Vice President, I had seen that there were a lot of challenges before this bar, which we were able to win over during our tenure. I accept that last 1 year was very tough for our bar members, but with the help of immense efforts of our fellow members of our bar, we have able to manage that efficiently, and to a large extent, we have been able to overcome all the problems successfully by collective efforts. As so, I, as Vice President, have tried my level best to resolve all these issues. And some of these issues and our efforts made, I would like to discuss here. 6-7 issues are here. First, parking issue. Parking was seen as an eternal issue at our bar earlier, but during my tenure, it was redressed with multi-dimensional approach. And the parking were segregated for the members of the bar and for outsiders, by which issues was resolved to a large extent, and we have generated the income by segregated parking. And now at present, I have managed to generate revenue of 4 to 5 lakhs per month for our bar. Second, rationalization of salaries and disciplined staff. When I joined as Vice President, there was a lot of variance between the income and expenses of the bar, and salaries of the employees were one is getting employed. Being Vice President, I have taken the plunge to rationalize the salary of the employees to make it transparent and to balance the income and expenditure of the bar. And second, action against touts. That is a major issue. For a long time, we were receiving complaints of our fellow members about the touts in High Court premises. I personally took strong action against their gang in the favor of our fraternity. And rationalization of salaries and disciplined staff, I have already discussed. Now, solidarity. We were able to bring solidarity among the members of our bar as with other bars of Punjab and Haryana at times. And from the last 1.5 years, where our fellow colleagues faced any issue, we showed our solidarity. Action against non-tribunalization. That is a major achievements of our bar members. We have tried our level best to demonstrate our protest against the tribunalization, in which we turned out successfully. And thereafter, now next issue, our security issue of our bar members and our High Court. Security of bar member was also major concern, which was being neglected in the preceding years. We have upgraded the security system, installed the camera on the required places. Thereafter, help and assistance to our honorable members. I was present as 24/7 for our bar members, and in case anyone else needed help, be at police station or anywhere else, and it is known to my colleagues or honorable members. Thank you, sir. Sir, we will come back to you for the balance issues. Please. Over to Hriday sir now. Sir, also I would like to inform all the panelists that this platform would be multicultural, multilinguistic. So we can use any language that we are comfortable with. Oh, thank you, Dispute Language which is open for the viewers as well. Sure, sir. शमीला जी, विकास जी, इमरान अली जी, सबको और जो व्यूअर्स हैं सबको नमस्कार। और लैंग्वेज की बात तो चलो ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे मुद्दे हैं, ये पार्किंग का मुद्दा हो गया, इवन एम्प्लॉइज का मुद्दा हो गया, ये मैं समझता हूँ जैसे हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। अभी एक मुद्दा हमारे सामने ये है, वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म का मुद्दा, कि जो प्रोफेशन का एग्जिस्टेंस है, यही तो अब खतरे में आ गया है।
और हम अपने पार्किंग के मुद्दे को लेकर अभी इस समय बात नहीं कर सकते। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने जो जिनसे अपील करनी है वोटर्स को, उनको मैं क्या कहकर अपील करूं कि मैं इलेक्शन क्यों लड़ रहा हूं, अगर मैं उनको ये नहीं कह सकता कि मैं अपने प्रोफेशन को इस समय बचाना चाहता हूं। प्रोफेशन का हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, पैनल्स हैं हमारे पास, कई चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर 3700 तो हमारे जो वोटर्स हैं, 5500 हमारे वो मेंबर्स हैं 5500 जो रेगुलर सब्सक्रिप्शन पेयर हैं, और मोर देन 10,000 हमारे बाहर के मेंबर्स हैं। हमने तो सभी का सोचना है 10,000 के पूरे का, नॉट इवन 3700। ये इस समय जब कोरोना आया तो सबसे पहले मुझे अजीब सा लगा जब मैं फाइलिंग करने गया और मुझे पता लगा कि आज तो फाइलिंग हो नहीं सकती। दैट वाज 17th of March. I inquired why, because on 15th of March 2020 our executive committee, the last elected executive committee, that had given a resolution that no more cases are to be conducted in the High Court due to the corona pandemic. This corona pandemic, it turned out to be like a dud bomb. वो हम बॉम्ब को लगाते हैं, फिर उसके वेट करते हैं कि शायद ये फटेगा, वो नहीं फटता। ऐसा ही ये कोरोना का कुछ हुआ। लेकिन हमारी सबसे पहले जो कॉल हुई हमारे एग्जीक्यूटिव के, वही हमारे पांव पे हमने कुल्हाड़ी मारी 15/3 के रेजोल्यूशन पास करके कि नो एडवोकेट वुड कम टू द कोर्ट। उसी से सब ये हो गया कि कोर्ट्स उसी दिन बंद हो गए। 16 से कोर्ट्स बंद हो गए, 17 से फाइलिंग बंद हो गई। लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड ऑन 23rd of March। सबसे पहले अब इसमें दिक्कत आती है कि हम एक क्लास एक हैं, लेकिन हमारे में स्टेजेस क्लास की बहुत डिफरेंट हैं। कई सीनियर एडवोकेट्स हैं जो कंफर्टेबल नहीं हैं इस माध्यम से, हम हो सकते हैं, कई नहीं हैं। तो उनके लिए हमें एक वाया मीडिया सबसे पहले ढूंढना है। वाया मीडिया क्या है? अगर हम हाई कोर्ट का जो बिल्डिंग है और जो एम्प्लॉइज हैं उनका अगर हम खर्चा देखते हैं तो 30 करोड़ प्लस का खर्चा तो एम्प्लॉइज का है। एंड दैट बिल्डिंग होल एंड दोज एम्प्लॉइज दे आर लाइंग यूजलेस फॉर द लास्ट 6-7 months। सबसे पहले वो जो कोर्ट रूम्स हैं, जज साहब कैन सिट इनसाइड देयर चैम्बर, देयर कैन बी बिग स्क्रीन इन द कोर्ट रूम, पीपल कैन कम देयर फिजिकली even when, so that when they have to give a document or to even meet the judge or something like that, they can be present physically at that very podium to which they are used to the whole life। वहां पर वो खड़े होके उस स्क्रीन से एड्रेस कर लेंगे। जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और जो हमारा प्रोफेशन है वो भी चलता रहेगा। इसमें समस्या देखिए, अगर हमने कहीं भी और कोर्ट में जाना है, जैसे कुछ दिन पहले मोहाली कोर्ट में मेरा खरड़ के कोर्ट में केस था, वहां पर जाकर मैं हाई कोर्ट से तो वीसी कर सकता हूं, लेकिन खरड़ कोर्ट में मुझे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ रहा है। मीनिंग देयर बाय दिस ट्रैफिक इज नॉट टू वे। जो हमारे बार के मेंबर्स हैं, दे वुड नाउ बी आउट ऑफ वर्क बिकॉज people, the honorable members of the fraternity sitting at their places, they can conduct through virtual courts proceedings at our high court, but we cannot conduct the proceedings at those district level courts। ये एक मुद्दा जो सामने रखा जाएगा। अब आप पूछोगे कि फिजिकल कोर्ट्स कैसे खुलवाए जाएंगे। ये हमारी कमेटी जो आउटगोइंग इलेक्टेड कमेटी है, इन्होंने हमें बड़े अच्छे से बताया कि जैसे जब कोई बार काउंसिल का कोई मुद्दा आया तो उसके बाद जनरल हाउस भी हुआ यहाँ पर। उससे पहले कोरोना कोविड करके इन्होंने ये कह दिया गया था कि यहाँ पर संभव नहीं है जनरल हाउस का होना, जो हमारे मुद्दे इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी, हम रिक्वेस्ट करेंगे, इवन मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि जजेस फ्रॉम दोज हाई कोर्ट्स व्हिच हैव स्टार्टेड फिजिकल वर्किंग, दे शुड बी इंडक्टेड इन आवर हाई कोर्ट, एंड जजेस फ्रॉम आवर हाई कोर्ट ऑन अ टेम्पररी बेसिस, लेट अस से, they can be transferred to those courts so that the physical opening, the resumption of work in a normal manner, वो थोड़ा hasten हो जाए। Thank you, sir. Sir, taking your point forward, शर्मिला मैम, would you be, आपको लगता है कि ये virtual से physical hearing start होनी चाहिए कोर्ट में? हाँ, मुझे लगता है कि physical hearing start होनी चाहिए। Okay, in a phased manner, so that it could be workable। Okay, but if you मैम, अगर हम कंसिडर करते हैं कि जब हमारी 10 o'clock सुबह कोर्ट टाइमिंग स्टार्ट होती है, तो there is an extreme rush at the gates, and that would also be attributed to the problem that anybody and everybody wearing a black suit and an addition of a gown in the winters can walk into the high court without any security check। अब हम देखें तो 2014 में एक RFID टैग्स के गेट्स लगे थे, RFID टैग्स प्रिंट हुए थे,
subsequently उसका जो contract था वो renew नहीं किया गया. So do you think that ऐसा कुछ होना चाहिए और there should be an upgradation of such a system ताकि जो entry हो seamlessly, if we go back to physical hearing, that the entry point should not become a cause of concern for the widespread of the corona crisis? Yeah, to my mind, High Court is the most crowded place in Chandigarh. Yes. और our security is to be ensured. उसके लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. One of them, which is in my mind, is कि हम जो स्टिकर इशू करते हैं अपने सभी ऑनरेबल मेंबर्स को, it should have a sensor and entry should be through that only, so that no member who is not member of the bar doesn't enter the court premises. It would help in live streaming of our smooth running of the traffic also. It would ensure our security also. On a very positive and a very well noted point, विकास सर, जैसे अब गाड़ियों में फास्ट टैग सिस्टम स्टार्ट हो गया है, where on the toll booths the congestion has been reduced, कि अब काफी वो वेटिंग टाइम कम हो गया. The same manner we can also introduce that. ऐसा कोई RFID टैग, रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग बन सकता है जिसमें at the point of entry only a vehicle belonging to either High Court staff or to an advocate or any authorized person coming to the High Court, वो गेट तभी खोले अगर वो RFID टैग लगा हुआ हो. इमरान भाई, ये सभी चीजें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं. ये फिजिबल, पहले हमें लगा कि हम चेक करते हैं कि ये फिजिबल है भी कि नहीं. बोलने को तो मैं कुछ भी कह दूंगा कि जी टैग भी होना चाहिए, क्योंकि जब मॉर्निंग में वकील आते हैं और जब वो भीड़ लगी होती है, लाइन लगी होती है, तो फिर लोग वेट नहीं करते कि भैया पहले वो बैरियर उसके आगे पड़ेगा, फिर वो खुलेगा, फिर वो निकलेगा. मैंने खुद खड़े होके पार्किंग में चेक किया है कि ये चीजें पॉसिबल है कि नहीं है. ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ शुरू में मैंने देखा कि जो गाड़ियां सिर्फ स्टिकर लगा हम उन्हीं को अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए. टैग तो सेकेंडरी चीज है. जो वकील, बहुत से वकील ऐसे जिन्होंने पार्किंग स्टिकर लिए नहीं. अब जिन्होंने पार्किंग स्टिकर ही नहीं लिए वो टैग कैसे लगवा लेंगे? सेकंड, अगर मैं किसी वकील को बोलता हूँ कि जी आप टैग लगाओ, ठीक है, वो कहेगा भैया मेरी मर्जी में लगवाऊंगा, नहीं तो लड़ाई पे उतरेगा. और हमारे साथ लड़ाई हुई भी है वकीलों की. तो ये चीजें फिजिबल नहीं है. फिजिबल ये है, देखो सिक्योरिटी मस्ट है, पार्किंग स्पेस हर वकील को मिलना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा इशू है. लेकिन सारी चीज घूम के आती है कि स्पेस, जो कि हमारे पास बहुत कम है स्पेस, क्योंकि हजारों गाड़ियां आती हैं. हाई कोर्ट के स्टाफ की भी है जो कि हमारे बीच में आके खड़ी करते हैं, लॉयर्स की भी है. एक यंग लॉयर है, वो बाइक पे भी आ सकता है लेकिन वो कार पर रेफर करता है, तो वो उसकी मर्जी है. उसके अलावा क्लाइंट है जो हमारे पास आते हैं कि जी कहीं दूर दूर से है. सिपाही, एक सिपाही भी गाड़ी लेके आता है हाई कोर्ट में जब वो पेशी पे आता है, तो और वो भी कोशिश करता है कि हाई कोर्ट के अंदर गाड़ी वो ले जाए. तो हमारे यहाँ पे इशू जो हम बोल रहे हैं, मेरे को 1.5 साल से मैं ये चीजें देख रहा हूँ कि हम जो चीज सोच के आए थे उसमें से हम अभी तक 25% ही कर पाए हैं. वो भी हमने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि हम कुछ ना कुछ बार मेंबर्स को दें, एटलीस्ट पार्किंग के लिए भी. अब जैसे सिक्योरिटी वाला सिस्टम है, बिल्कुल ठीक है, टैग सिस्टम होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें सभी वकील की कंसेंट लेनी पड़ेगी, जो कि फिजिबल नहीं है आज के दिन. अब उसके लिए अगर मैं बोलता हूँ कि सभी मेंबर्स के ड्यूज क्लियर हो, जो कि आज के दिन नहीं है, जिसके ड्यूज क्लियर होंगे उसको हम टैग दे देंगे और वो टैग ले लेगा. अब मैंने टैग ले लिया, ए ने ले लिया, बी ने ले लिया, सी ने टैग नहीं लिया, तो सी बाहर पार्किंग पे हट जाएगा कि तुमने मेरी गाड़ी कैसे रोक दी, मैं भी बाहर का मेंबर हूँ. हम उसको कहूंगा नहीं भैया तो तेरे ड्यूज क्लियर नहीं है, तू अंदर एंट्री नहीं करेगा. तो ये चीजें फिजिबल नहीं है. अगर हम स्पेस दे दे बहुत, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जो कि मैंने कोशिश की है कि हमारे बार मेंबर्स को हम स्पेस प्रोवाइड कराएं. ठीक है सर. Over to you, Hriday sir. Do you think that there is a workable solution with respect to this problem? Because this is a problem that plagues us every day of our working life. Do you parking problem, sir? At the point of entry, if there is free flowing traffic, how we have it right now, and only at the entry of the parking, our designated parking, whether it's on the little hill post gate number 5, or whether prior to that there are multiple parking slots, if only the tag might be used for the entry of the parking on that slot, not for the complete free flow of movement, and a one-way side throughout the day, that there will be only one-way traffic, nobody would be allowed to jump lines between lines. Is there a workable solution for this problem?
देखिए पैराडाइम चेंज करते हैं। मैम ने एक बात बहुत अच्छी कही, शर्मिला मैम ने, कि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो हमें इसका ब्लेंड करना है। अगर हम पार्किंग को आइसोलेशन में देखेंगे, इट माइट नॉट बी वर्केबल, क्योंकि मैं जब से बाहर में आया हूं, हर पोस्ट के लिए अगर एक प्रॉमिस किया जाता है तो वो पार्किंग समस्या को रिमूव करने का है, वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन वो बीच में आप देखिए, उसमें मैंने कंट्रीब्यूट क्या करने की कोशिश करी। हमारे मेंबर हैं वहां पर, एग्जीक्यूटिव मेंबर परमानेंट उनको कहते हैं, मल्ली साहब, उनके साथ मिलकर एक वॉक थ्रू बनाया ताकि लोगों को जाने में दिक्कत ना हो। 5 नंबर गेट के सामने आप देखेंगे जहां पर बिल्कुल मोटरसाइकिल स्कूटर लग जाते थे, आगे नहीं जा सकते थे, उसमें वो गमले रखवा के एक पैसेज बना दिया गया। तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने अपने लेवल पे जितनी मतलब मेरे समझ में आती थी वो करी हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि अगर इसको, मैडम वाले जो सजेशन है कि लेट अस हैव अ ब्लेंड ऑफ थिंग्स इन यूजिंग टेक्नोलॉजी, अब अगर वर्चुअल कोर्स के साथ हम ये करते हैं कि मेनी डेट्स आर इनइफेक्टिव डेट्स, ये आप सभी मानते हैं, दैट कैन बी थ्रू दिस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। उनका एक टाइम सेपरेट आप रख दीजिए, कोर्ट्स ही सेपरेट कर दीजिए, नॉट द रजिस्ट्रार्स कोर्ट जैसे हमने एक बार पहले एक्सपेरिमेंट किया था, बट ऑफ जजेस कोर्ट। वहां पर जो इनइफेक्टिव डेट्स हैं, जैसे अभी रिप्लाई नहीं आया हुआ, किसी ने कुछ अगर खास प्रेजेंट करना है तो जज साहब कैन टेक नोटिस ऑफ दैट, उनको वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पे रहने देते हैं। Some advocates may not need to come to high court even every day. अब आ जाता है सेकंड कंसेप्ट, आ जाता है कि अगर इस तरह से हम इस डे को 2 में पार्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, मान लीजिए एक फर्स्ट शिफ्ट है 3 आवर्स की 10 to 1, सेकंड शिफ्ट इज 2 to 4 of 2 hours। हम टाइमिंग दे देते हैं केसेस के कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा केसेस, आपके इवनिंग में होंगे। एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट, कोई बड़ी बात नहीं है कि एडवोकेट्स के जो डिफरेंट केसेस हैं वो हम एक शिफ्ट में लगा दें। वी वुड रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ द चीफ जस्टिस फॉर दिस पर्पस, बट इट इज अ डूएबल थिंग। उसी से आप देखेंगे कि जो लोड है एटलीस्ट अगर 33-40% नहीं तो हो सकता है कि 25% वो रिड्यूस हो जाए, जो पार्किंग की समस्या है। बाकी ये है कि अगर पैसेज क्लियर रखा जाए, किसी को अलाउ ना किया जाए और सभी की सहमति लेकर फाइन की प्रोविजन एक रख ली जाए, तो ये हो सकता है। क्योंकि मैंने एक बार रिक्वेस्ट करी थी, हम एक एडवोकेट साहब कोई गाड़ी लगा के चले जाते हैं वहां पे रास्ते में, तो मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी, जैसे मलिक साहब ने अपने रूम में वो सारी लाइब्रेरी के कैमरे लगा रखे हैं, तो मैंने यूटी वालों के पास जो कैमरे हैं हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के, मैंने कहा था भी सेक्रेटरी के रूम में लगा दीजिए, जहां पर कहीं प्रॉब्लम होगी हमारी टीम एकदम से वहां पे जा सकती है, एडवोकेट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि यहाँ पर आप पार्किंग ना करो। दैट कैन हैपन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मे बी इन रियल टाइम, कि हम डायरेक्ट कर दें पार्किंग वाले को। सो दीस आर सम सॉल्यूशंस। सर नाउ विकास सर, with respect to the parking, with respect to cars, we've had a long discussion, but अगर हम देखें सबसे बड़ी problem to a young junior lawyer when he comes to the high court and they come in by the thousands every year is the lack of space to be seated somewhere. Now हमारे जितने existing counsels हैं, जितने up till 2020 enroll हुए हैं, उनके लिए भी इतनी शॉर्टफॉल है कि अब कॉरिडोर्स में उन्हें सीट्स और टेंट शेड्स लगा के बैठना शुरू कर दिया है। नाउ देयर इज नो स्पेसिफिक डेटा एज टू कितने लोग अभी हैं, कितनों के पास सीट्स हैं, कोई डेट लिस्ट सिस्टम है, तो आपके ओपिनियन में इसका क्या सोल्यूशन है इन द इयर्स टू कम? इमरान, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हमने ज्वाइन किया था एज वाइस प्रेसिडेंट, तो हमारे पास ये बहुत बड़ा मेजर इशू है कि हमें सीट्स चैम्बर्स नहीं है। पहली बार जब हमारी कमेटी में डिस्कशन हुआ कि हम चैम्बर्स क्यों ना बनाएं, तो जो हमने सारा ट्राई किया कि वो हमें फिजिबल नहीं लगा, फिर हमें लगा हम बार रूम बनाते हैं। तो जो ओल्ड चैम्बर्स हैं उनके ऊपर जो फ्लोर, टॉप फ्लोर जो खाली पड़ा है, हमने चीफ जो हमारे मुरली साहब थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि जी प्लीज आप हमें अलाउ कर दो। तो वो कहते हैं यार इन रिटर्न तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, हाँ आप कंस्ट्रक्ट कर लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 1.5 करोड़ का लगभग हमारा एस्टीमेट बन रहा था, लेकिन मेनवाइल मुरली साहब चले गए, तो वो प्रोजेक्ट एज इट इज रुक गया। उसके बाद क्या हुआ कि भैया यंग लॉयर्स आए कि सर हमें सीटिंग कहीं ना कहीं टी टेबल, पहले होता क्या था कि पहले सिर्फ चाहिए होता था लोगों को कि उनका जो बस्ता है वो रखने की जगह मिल जाए। उस टाइम क्राउड कम होता था, जब मैं आया था उस टाइम क्राउड बहुत कम था, हमें ये लगता था कि आप बार रूम में हमें जगह मिल गई वही बहुत है। अब उसके बाद सेकंड स्टार्ट हो गया कि टी टेबल के लिए भी लॉयर्स को जगह चाहिए कि उनके लिए बार रूम अलग, टी टेबल अलग, क्योंकि बार रूम में वो खाना नहीं खा सकते।
तो इसलिए स्पेस तो उतना ही है, लेकिन हमारी डिमांड्स हमारी बढ़ती जा रही है। नो डाउट बढ़नी भी चाहिए टाइम के हिसाब से। हर वकील को लगता है कि अब थोड़ा मैं चेंज करूं सिस्टम। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास एटलीस्ट 50-60 लॉयर्स आए कि सर हमें बैठने को जगह चाहिए, हमें नहीं पता कैसे मर्जी आप अरेंज करके दो। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है भाई, आपको जहां स्पेस लगता है आप बैठिए। तो कहता सर हमें उठा देंगे। मैं कहा उठने में आपको दूंगा नहीं, आप बैठो। उन्होंने लाइब्रेरी के साथ जो कॉरिडोर है उसमें उन्होंने बैठना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये बात चीफ साहब को पता लगी, चीफ साहब ने मुझे कॉल किया कि भैया जी आप मतलब उन्होंने पर्टिकुलर मेरे को बोला कि तूने अलाउ किया विकास कि यहाँ ये सब बैठ जाए। मैं कहा सर बिल्कुल मैंने अलाउ किया है, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि इनके पास बैठने की जगह नहीं है। आप ऐसे कीजिए, आप कोई भी एक बार रूम नया कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, चैम्बर्स बना दीजिए, ये सभी यहाँ से उड़ जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इनको यहाँ बैठने दीजिए। उसके बाद चीफ साहब ने उनको वहां से नहीं उठाया। अदरवाइज आप कहीं भी अगर मैं नई जगह बैठूंगा तो कोई ना कोई हाई कोर्ट का स्टाफ आएगा और वो मुझे बोलेगा कि आप यहाँ से उड़ जाइए। लेकिन वो वहां पे बैठ गए, लेकिन इससे तो बात कुछ रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं। तो अभी होता क्या है कि जो हमारे सीनियर जजेस हैं, वो उनसे हम बहुत बार बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज आप कुछ अरेंज कीजिए, अगर चैम्बर्स नहीं हो सकते तो आप बार रूम हमारे बना दीजिए। लेकिन जजेस ये खुद बोलते हैं कि यार अब आप सारी जगह आप देख रहे हो, आप हमें पर्टिकुलर एक जगह बता दो कि वहां पे चैम्बर्स या बार रूम बना दे। जैसे हम उनको सजेस्ट करते हैं कि ठीक है जी आप इसके ऊपर बना दीजिए, नहीं नहीं यार एडमिनिस्ट्रेशन वाले रोक देंगे। मतलब हम उनको सजेस्ट करते हैं, वो कोई ना कोई बहाना मार के उस टाइम वो रोक देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन इशू ये फिर भी खड़ा है हमारे सामने कि हमें हर लॉयर को बैठने की जगह हाई कोर्ट में मिलनी चाहिए। और लेकिन सेकेंडली स्ट्रेंथ हर साल इंक्रीज हो रही है। कुछ मतलब लास्ट आप 10 ईयर से अगर आप उठाते हो तो थाउजेंड्स लॉयर हर साल हमारे यहाँ पे एनरोल्ड होते हैं। उनमें से 80% यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, 20% या तो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं या लोअर कोर्ट में चले जाते हैं। तो स्पेस उतना ही है। 2002 में भी जब मैं आया था तब भी स्पेस उतना ही था, आज भी स्पेस उतना ही है, लेकिन लॉयर्स हो गए ट्रिपल। तो अब इशू ये है कि हमें क्या लगता है कि मैं बहुत सारी बातें बोलूंगा क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, वीडियोस में आइडियाज दूंगा, लेकिन उन आइडियाज को कोई इम्प्लीमेंट करता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते, लेकिन बहुत सी सारी चीजें हैं जो कि हम कोशिश करते हैं हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है कि मेरे को बोलना बड़ा आसान है कि जी यहाँ बना दो, यहाँ चैम्बर बना दो, यहाँ पे आप बार रूम बना दो, लेकिन भैया उसके लिए आपको दो बंदों से लड़ना पड़ता है, हाई कोर्ट से, एडमिनिस्ट्रेशन से। हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं, हाई कोर्ट कहता है एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं देगा, और एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करते हो कहते हैं हाई कोर्ट से पूछ लो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ना हमें चैम्बर मिले ना हमें बार रूम मिले। लेकिन हाँ, हमें लगता है कि वकील का राइट है अगर वो हाई कोर्ट बार का मेंबर है कि उसको सीटिंग स्पेस मिले। और इसके लिए मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि मैं जहां उनको जगह मिलती है मैं उनको बोलता हूँ कि प्लीज आप यहाँ पे बैठिए, ठीक है। अब ये इस इशू में बहुत टाइम चाहिए, 1 साल 2 साल में ये इशू इतनी जल्दी सोल्व नहीं होगा। बहुत साल पहले चैम्बर्स बने थे हमारे, जो न्यू चैम्बर्स हैं वो मेरे ख्याल में 6-7 साल पहले बने थे, उसके बाद अभी तक कोई चैम्बर नहीं बन पाया। उनके ऊपर भी जगह है, वहां चैम्बर्स बन सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट भी इतनी जल्दी एक्शन लेने के मूड में मुझे नहीं दिख रहा। Thank you, sir. Sharmila, when we talk about women empowerment, considering that this election is a very privileged election, जहाँ पे आप देखिए top 5 posts में से 4 में there are ladies contesting. Yes. When we see the total number of posts, including the executive, total 22 number होंगे, और इनमें से 4 अगर if all 4 win and there's 1 from the executive, there will only be 5 ladies in a pool of 22. Yes. So do you think something can be done where the women can be empowered at this level at the first outset? Imran, let me be very clear that when we are advocates, we are gender neutral. We are already empowered. That's how we are advocates. So, to my mind, although there is a patriarchal mindset, we have to face a different problem. It's not only the women who face problem. It's the young lawyers also, first generation lawyers also. We have our different challenges. Empowerment doesn't mean that somebody would induct power in you. You have to realize your powers
You are already strengthened, you are already empowered. You have to prove your metal, you have to fight it out. And to my mind, that is the only way. We can't beg equality, we have to claim it. Absolutely. I agree with you, ma'am. And we are very privileged to come from a high court where we have such a number of lady judges as well. So I completely agree upon you with that. Hriday sir, with respect to the stipend or the struggles of a younger lawyer, do you feel that there is a need of a compulsory stipend be provided to somebody who is probably a first generation lawyer who is finding it very difficult, जिसको day to day खर्चे करने में ही इतनी problem आती है, and a first generation lawyer को कम से कम 3, 4, 5 साल लग जाते हैं just to even अपने expenditures करने के लिए. So do you feel कि members of the bar who are doing very well, who are filing 100, 200, 300 cases a year and have an X number of junior associates, do you feel some stipend should be made compulsory that they might have to pay? देखिए, मैं वर्ड जो स्टाइपन है इसके साथ मैं एग्री नहीं करता हूँ. हमारे रूल्स में जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं उसमें प्रोविजंस हैं टू एसोसिएट यंग लॉयर्स विद द सीनियर वंस. अब मान लीजिए कि 10 साल से ऊपर की जो सजा वाला केस है उसमें, मान लीजिए कि 25,000 से ऊपर वाला कोई जो प्रॉपर्टी वाला कोई डिस्प्यूट है उसमें, it is directed in the high court rules that the advocate would associate with him a member who is having less than 10 years of practice. अगर हम उसको strictly करते हैं तो it would be fee of the young member rather than calling it stipend. तो थोड़ा डिग्निटी के लिए हम जो हमारा सारा प्रोफेशन है ये इसको हम नोबल प्रोफेशन कहते हैं. तो देयर इज नो स्कोप फॉर सच वर्ड, क्योंकि अगर आप देखें तो जो हमारे रोब्स हैं जो हम गाउन पहनते हैं उनके पीछे पॉकेट लगी होती है. वी आर नॉट इवन, वी शो रियलिटीज ऑफ लाइफ आर डिफरेंट, बट वी हैव टू शो दैट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द फी, वी आर कंसर्न्ड विद द सर्विस टू द सोसाइटी. तो ऐसे ही वो स्टाइपेंड नहीं, उनका जो प्रॉपर उनकी फी बनती है वो एक पार्ट उनको दे दिया जाए. लेट देम बी एसोसिएटेड विद द सीनियर एडवोकेट्स, नॉट डेजिग्नेटेड सीनियर्स बट सीनियर मेंबर्स ऑफ द बार, और उनको एक बार तय कर सकती है भी दिस मच ऑफ फी एटलीस्ट हैज टू बी गिवन. Absolutely, sir. Continue on that. Yes, ma'am. Yes, absolutely. One suggestion. Yes, ma'am. In my mind, I want it to happen that particularly lawyers, first generation lawyers and women lawyers, they are very competent person. Young generation, our younger colleagues, they have so many innovative ideas, but they find it difficult to procure work. So it would be my endeavor कि जितने भी high court के panels हैं, and we can also request to the AGs of the states कि जो 5 years, less than 5 years practice हैं, particularly first generation lawyers and women lawyers, they should be given priority so that they get work, and by working they will learn, they will get fees. It would maintain their dignity, it would maintain their self-respect also, and it would help them grow. Please, ma'am. Vikas sir, continuing on sir's point, एक जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक रूल है that when you file a case in the Supreme Court there has to be an advocate on record. Now जब हमारे हाई कोर्ट में कभी स्ट्राइक हुई है and there's a unanimous decision by the bar कि कोई appear नहीं करेगा, members from other bars come to our high court who are appearing and keep appearing in their matters. और जो हमारे क्लाइंट्स वहां पे बैठे होते हैं उनको लगता है that probably दूसरे बार से लेना ही बेटर है because वो तो appear होंगे ही होंगे. So do you feel एक ऐसा रूल होना चाहिए whereby a compulsory local counsel has to be there at the time of filing of any case, and the bar should apply on everybody the day the bar of our high court is on strike? इमरान भाई, एक्चुअली है क्या कि राही साहब ने बताया है कि जिसकी 10 साल से ऊपर की प्रैक्टिस है एज पर रूल एक जूनियर काउंसिल वो साथ लेगा. लेकिन बात आती है सभी की, मैं अगर भाई बाहर से दिल्ली से कोई भी वकील आएगा तो साथ में हमारा लोकल लॉयर्स उसको असिस्ट करेगा. लेकिन अगर सेम चीज अगर हम यहाँ पे भी जिसकी 10 साल से ऊपर की प्रैक्टिस है, अगर हम उनको बोलेंगे कि आप एक यंग लॉयर को आप साथ प्लीज असिस्ट करवा लीजिए, तो वो ये कहता नहीं भैया मैं नहीं, क्योंकि मुझे खुद फीस इतनी नहीं मिलेगी जी मैं जूनियर लॉयर अफोर्ड कर सकूं. तो बोलने की चीज, हाँ मुझे ये लगता है कि ठीक है हम हेल्प करते हैं लॉयर्स की,
जो हमारे बार मेंबर्स हैं उनको लॉयर, मान लो अगर उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए है तो हम उसको पे करते हैं पैसा कि जी हमारा मैक्सिमम 75,000 हम उसको देते हैं कि ठीक है आप ले लीजिए। क्योंकि होता क्या कि अगर मान लो ये कलेक्टिव एफर्ट्स है, अगर किसी वकील को कोई भी हेल्प चाहिए हो, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो, तो अगर मैं बार पे छोड़ दूंगा कि जी बार मेरी हेल्प करेगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत से हमारे सीनियर्स लॉयर हैं जो अगर चाहें तो वो हेल्प कर सकते हैं यंग लॉयर्स की। पहले तो फर्स्ट तो वो एक उसको अच्छा अमाउंट दे, मतलब जैसे हम बहुत से लॉयर्स हैं, सीनियर लॉयर्स हैं जो कि जूनियर काउंसिल रखते हैं लेकिन उनको वो पे नहीं कर रहे हैं, और इवन कई जूनियर काउंसिल पे डिमांड नहीं करते हैं क्योंकि फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है वो डिमांड नहीं करेगा। लेकिन जो छोटे शहर से उठ के यहाँ पे आया हुआ है उसको नो डाउट की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है। और लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ, अगर बार के पास पैसा है, बार के पास फंड है, तो वो उसको जरूर हेल्प करनी चाहिए सीनियर यंग लॉयर्स की। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं, इवन एम्प्लॉयज को पैसा सैलरी देने के लिए, तो मैं लॉयर्स की, यंग लॉयर्स की मैं हेल्प कैसे कर दूंगा? तो सबसे पहले बार फंड इतना होना चाहिए कि भैया अगर हमें लगता है कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट है तो ठीक है जी, हम अब यंग लॉयर्स को स्टार्ट करते हैं पर हर मंथ देना गलत भी नहीं है, अगर पैसा है तो। थैंक यू सर। शायद मलिक साहब हैज नॉट फॉलोड योर क्वेश्चन। योर क्वेश्चन वाज कि जो भी बाहर की बार से मेंबर्स यहाँ पे केस कंडक्ट करने के लिए आते हैं, कि क्या ऐसा कोई प्रोविजन हम रख सकते हैं जिसमें हम उनको ये मैंडेटरी हो कि हमारा बार मेंबर, कोई भी काउंसिल फ्रॉम आवर बार विल असिस्ट हिम, we can work on it, and it is a workable solution also. Considering the council is coming, मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, sir, everyone, this will have to, one second, this will have to be a discussion between the moderator and every candidate. So I will be recognizing each one of you individually. So let this be an overlap between candidates. Over to Vikas sir. My only purpose of asking, मेरा ये question का ये purpose था that अगर कोई council बाहर से आता है, so that council will have taken an X amount of fees, which makes that person's worthwhile leaving their high court and coming here and case. कम फीस का इशू वो arbitrary सा थोड़ा हो जाएगा। नहीं, इमरान, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ मैम की क्वेश्चन का। जी। बाहर से कोई भी लॉयर जब आता है तो वो लोकल लॉयर को एंगेज करता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करता। ठीक है, वो बेशक वो लोकल जो लॉयर है वो जाके आर्गुमेंट नहीं कर रहा होता, लेकिन वो फाइलिंग लोकल लॉयर के थ्रू करवाता है, वो डायरेक्ट फाइल कभी नहीं करता। ठीक है, सेकेंडली वो लॉयर उसको असिस्ट करता है, कोर्ट में बेशक ना करे। तो मैक्सिमम केसेस 90% केसेस में बाहर से जो लॉयर आता है वो हमारे यहाँ पे लोकल लॉयर को एंगेज करता है। हाँ, वो यंगस्टर्स को करता है कि वो किसी सीनियर्स को करता है, वो सेकेंडरी इशू है, लेकिन वो यहाँ पे करता है एंगेज एक वकील को जो हमारी बार का मेंबर होता है। थैंक यू सर। ओवर टू हृदय सर। इनकी जो इससे पहली एग्जेक्टिव थी लास्ट टू लास्ट टाइम की, उन्होंने काफी कोशिश करी थी और उन्होंने एक रूल भी शायद अमेंड करवाया था कि जिसमें ये कंपल्सरी हुआ था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का पैटर्न है दैट दे हैव टू एंगेज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, वो इस तरह से यहाँ का भी एक लोकल एडवोकेट को एंगेज करना मैंडेटरी हो। थैंक यू सर। To my mind also, Vikas sir, since you were a part of the current team working for the High Court, there is एक requirement है, और ये pandemic की वजह से ये और increase कर गई requirement कि हमारी बार डिजिटलाइज टू अ हायर एक्सटेंट हो। अब करंटली 5-6 कंप्यूटर्स में 2-3 में जिनमें जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, उसमें भी जो काउंसलर्स जिनके घर में ऑफिसेज नहीं है या वो सिचुएशन नहीं है जिसमें वो आर्ग्यू कर सकें, अब उनकी प्रॉब्लम होती है कि एक काफी लंबी क्यू होती है फॉर देम टू आर्ग्यू बिकॉज द कंप्यूटर्स आर लिमिटेड। उसके ऊपर से जब चल रहा होता है, क्योंकि एक बड़ा रूम है जिसमें से ये चल रहा है, तो उसकी वजह से ओवरलैपिंग हो जाती है, 2-3 मैटर साथ आ जाते हैं डिफरेंट काउंसिल्स के। तो इसका वर्केबल सॉल्यूशन क्या रहेगा? अब ये ड्यूरिंग कोविड पीरियड जब स्टार्ट हुए थे थ्रू पीसी, जब स्टार्ट हुए थे केस, तो उसके बाद ये इशू आया था कि भैया अब जो जिन लॉयर्स के पास कंप्यूटर नहीं है, अब वो बेचारे कैसे करेंगे वीसी। तो फिर हमने 4 स्टेशन, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और हाई कोर्ट,
यहाँ पे हमने 4 स्टेशन बनाए थे और हमने मैसेजेस भी फ्लैश किए थे कि भैया जो मोहाली से बिलोंग करता है वो वहां पे जाके वहां पे प्रॉपर सेटअप हमने क्रिएट किया था चारों जगह पे। तो लेकिन जो लॉयर्स ने प्रेफर किया हाई कोर्ट में आना। अब जब उन्होंने यहाँ पे हमारे पास एट प्रेजेंट जो हमने अभी परचेज किए 27 कंप्यूटर्स हमने हाईटेक लिए हैं, जिसमें कि हमारे साथी साहब हैं, राही साहब ये कह रहे हैं कि ये चाइनीज है लेकिन हमारा जो पैसा था वो उन पे लग गया। अब 27 कंप्यूटर्स जो हमने लाइब्रेरी में रखे हुए हैं और पिछले लास्ट 3-4 मंथ से 20 के 27 कंप्यूटर ऑक्यूपाई रहते हैं लॉयर्स के पास। हाँ, जो शुरू में नेट इशू आया था वो भी हमने वाईफाई लगाया ताकि किसी वकील को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डिजिटलाइजेशन भी लाइब्रेरी की, अब डिजिटलाइजेशन मैं किसको बोलूंगा कि सब चीज मैं फोन पे कर लूं या मैं फोन इस पे कंप्यूटर पे कर लूं। मुझे जो लगता है कि आज के दिन जो हमारी नीड है वो ये है कि जी हर वकील जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिसके पास नेट फैसिलिटीज नहीं है, उसको मैं वो चीज प्रोवाइड करवा दूं। आज के दिन इशू ये है और इस चीज में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हूं। Thank you, sir. Over to Rahi, sir. Sir, when I earlier spoke to you, I said कि एक new first generation lawyer को ये problem होती है थोड़ी finances की। अब उसके बाद एक further burden होता है law finder और ये SCC online के लिए। So can some workable solution be worked? Because at the end of the day, everyone does not have a very big library available, at least a first generation lawyer. It takes years of practice for them to build it. So the first step to getting, finding judgments, finding law would be these online softwares. So is there a workable solution? Can these people be spoken to for providing somebody with less than 5 years experience at a nominal rate? Because if you see that, these workable solutions there has to be an answer for them. So what would be your take on that? Sir, every housewife, she goes to market and she bargains. She says, नहीं भैया 2 किलो 40 के 5 किलो कितने के दोगे, और वो रिड्यूस कर देता है। I see it happening every day in the market. I don't indulge into that because from the day one that I have come into this bar politics to serve the bar, my first commitment, my first promise is that we will indulge in collective bargaining for the bar. We are having 10,000 plus members. Earlier we were having 12,000 plus members. Some were not paying subscription. The earlier committee removed around 2,500 or 3,000 members. Suppose I tell them that we have to buy 100 CDs. What will you give discount? Yes. They are charging 35,000, 42,000 for this CD, and they are charging 11,000 for updation. I say I'll get 100 updation. You forget about going to everybody's home. A bar will do it. How much can I bring it down? I think I can bring it down to 7,500 per annum. Please. That would be the very first instance of 100. Say I say 1,000. I say 1,000. I say I want to buy white shirts of good quality. 10,000, 40 size. 10,000, 42 size. Okay, you'll obviously be able to bargain much better with the larger quantity. See, the earlier generation advocates, the pre-1990. When I visit their office, I see they conserve everything, even the base paper they conserve. True. Why we have lost that those things? We have to True. again do it because it's COVID time and it is a national. We have to save it nationally. Please. Everything we save. Absolutely. That helps the nation. Absolutely. So collective bargaining हम क्यों नहीं करते? अभी तक हम क्यों नहीं कर पाए हैं? Even I started a website, highcourt.online, where I said कि you can give your requirements, but so that we can go and approach the person. We want 10 breezas maybe in per month. Okay, let's do it. What's the hitch in that? Absolutely. Why they have not been able to do it so far? I fail to understand it completely. Absolutely. Sharmila ma'am, your take on this issue? Yes, sir. I'm one with Mr. Rahi. Our profession, it's a battlefield every day. And without arms, we can't fight. And a new lawyer who is new in profession, our younger colleague, they must be given access, at least for 1 year free access to the law journal. And then we can work that they are provided these law journals online on nominal rates. And it's not that difficult. We can very successfully work on it. And moreover, it's not the only duty of the bar also. The bar and bench,
we are useless without each other. There should be a bridge between the two. We can request our honorable judges also. They have provided place for a mediation center. They have provided space for lok adalat. Why can't they provide space to us, that where we can set up this for this video conferencing Absolutely. with a Absolutely. search engine, Absolutely. with the efficient staff, with the Absolutely. efficient mechanism? So we can work on that, and that can be worked. It can, the communication is the only way how we has Sure. the ability to pursue. Thank you. Thank you. Over to Vikas sir to have his concluding statements on the issue. फिर से रिपीट करो क्वेश्चन इमरान सर। जैसे जब हमारी फर्स्ट जनरेशन काउंसिल है, उसके लिए फंड्स का बड़ा इशू होता है, इसलिए हमने मल्टीपल चीजों के बारे में बात करी, जहां पे लोकल काउंसिल को एंगेज करना चाहिए और एक नॉट स्टाइपेंड बट एक फीस देनी चाहिए। तो ये जो इश्यूज हैं, जो ऐसे मैम ने कहा कि हर दिन इज लाइक अ बैटल ग्राउंड इन कोर्ट, तो जो आर्म्स हैं वो हमारे पास SCC ऑनलाइन या लॉ फाइंडर या ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसपे हम जजमेंट्स ढूंढ सकें। तो ऐसा एक्सेस बार कलेक्टिवली नेगोशिएट कर सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर होटल गोज टू बाय समथिंग एज सिंपल एज आटा buying in 1000 kgs versus a household that goes and buys 1 kg, तो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बार के पास हायर होगी कि जी अगर हमारा 5 इयर्स से कम एक बार का मेंबर आए आपके पास, तो आप इस रेट का देंगे। तो ऐसी कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑन द साइड ऑफ द बार हो सकती है इन द फ्यूचर? कोशिश, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब होता क्या है कि जब भी कोई यंग लॉयर इस प्रोफेशन में आता है तो बहुत विकास पहले ये सारी चीजें वो फेस करता है। बता दीजिए अभी तक क्यों नहीं किया, ये बता दीजिए सर। नो क्रॉस टॉक प्लीज अमंग्स मेंबर्स। एक सवाल तो भाई साहब, पता क्या, ओवर जब भी हम कोई भी एफर्ट स्टार्ट करते हैं तो राही साहब की एक वीडियो आ जाती है कि जी भैया आप लोग ऐसा ठीक नहीं कर रहे हो। तो होता क्या है कि जो चीजें स्टार्ट होती है उससे पहले वो खत्म हो जाती है। तो राही साहब थोड़ी सी वीडियो आप टाइम पे डालोगे तो अच्छा रहेगा। अब ओवर टू डिस्प्यूट एंडम है। सर प्लीज नो क्रॉस टॉक सर, बिकॉज़ वी विल नॉट बी एबल टू गेट द पॉइंट फ्रॉम एनी वन ऑफ यू। इनको मैं कह रहा हूं कि अब ओवर टू डिस्प्यूट एंडम है, अब यही वीडियो बनाया करेंगे हमेशा। थैंक यू सर। विकास सर, योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एंड देन वी विल रैप अप पोस्ट दैट। यस सर। तो बाहर आपके अकॉर्डिंग ये एफर्ट्स हो सकती हैं इन द फ्यूचर इफ आई एम गिवन ये एफर्ट्स। अब वो एफर्ट्स कितने फ्रूटफुल है वो अभी मैं नहीं बता सकता इस चीज में। ठीक है सर। सो एंडिंग ऑन दिस पॉजिटिव नोट, एक सर लास्ट रिक्वेस्ट, सिंस वी हैव अबाउट 60 seconds मोर ऑफ टाइम, एक एनी वन ऑफ यू हु डज बिकम और डज गेट इलेक्टेड, व्हिच वन ऑफ यू विल, एक रिक्वेस्ट है दैट मेंटल हेल्थ इज समथिंग दैट इन इंडिया इज स्टिग्मेटिक, जहां पे a lot of households do not want to talk about mental health. And considering that we come from a profession, हमारे profession is one of the most hard hit professions due to this pandemic, to the fact that till today our court has not resumed. Now, can something on your, and I would request you that even if you do not feel as strongly for the issue, but something with respect to this mental health of young advocates, senior advocates, any advocate or anybody related to our profession should be done. Last comments and then we will conclude. इसकी एक दवाई आती है, इसकी एक दवाई आती है, फी, प्रॉपर फी। Okay sir, over to Sharmila ma'am. Sir, since our profession we have so much stress, and I am in agreement with you that our physical health and our mental health is as important as our physical health, and we have to work on it. We have to find some solace where we can relax. If once this pandemic situation is over, let us work on, we can organize some seminars, we can organize some yoga classes, we can organize tournaments, so that this feeling of brotherhood, we can a sense of belonging could work. And during pandemic, please, during pandemic. Sir, even after, because keeping in view the social distance, that's why I'm. And apart from this, even when this pandemic, and it is assumed
by stalwarts in the medical community that this will carry on, or the after effects iske rahenge 2-2.5 saal kam se kam ke liye. So this is something that none of us, at least my generation, we were never locked up inside our homes, at least the ones who we followed it accurately and did not get a stick on our head by the police. It was a very different situation for us, where we leave early morning and only get back late at night. For us to be locked up, and it did cause a lot of mental issues, up to the extent that parents started saying, you watch your Netflix, you watch, do anything online, get into these conferences. तो ये after effect mental health के respect में ये चलना पड़ेगा, because this is something that even up to the extent कि अगर एक psychologist, अब like we have a doctor sitting within the court, even if in that same premises, if a psychologist is made to sit where anybody who wants to share some. See, Imran, see, we are gregarious people, we advocates, we love company. As soon as this physical courts open, or we arrange some get together, our mental health would again go back to that state where it was earlier. It will hardly take some time, anytime. Last statement by Vikas sir, and then we will end. And there is a request to please join in at now in the next 3 minutes. We will have a presidential debate as well. Over to Vikas sir. जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा वही बंदा लॉयर बनेगा, पहली बात. इमरान को देख लो, इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग है. सेकंड कि अभी मार्च से लेके अब सिचुएशन डे बाय डे चेंजेस आ रहे हैं. मार्च से लेके जून तक नो डाउट मेंटली प्रेशर लॉयर्स पे था, लेकिन अब डे बाय डे वो प्रेशर कम हो रहा है. अब अगर मैं आज के दिन बात करता हूं कि मेरे पास जितने भी लॉयर्स आते हैं वो ठीक है, वो उनको ये होता है कि सर हम ठीक हो जाएंगे, आप ना फाइलिंग हमारी ज्यादा खुलवा दो, ठीक है. अब आज के दिन जो रूटीन के केसेस है, वो रूटीन का काम हाई कोर्ट में स्टार्ट हो चुका है. आज के दिन 800-900 केसेस हमारे डेली लग रहे हैं. अब लॉयर्स का जो प्रेशर था, मेंटली प्रेशर है, वो डे बाय डे कम हो रहा है. अब होपफुली नेक्स्ट मंथ या इन स्टार्टिंग ऑफ 21 जैन में हाई कोर्ट शायद स्टार्ट हो जाए. मतलब मैं प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि लेकिन जो मेरी बात होती है, सबसे लॉयर से बात होती है मेरी, हाई कोर्ट में बातें होती है, तो वो ये होता है कि भैया आप कोर्ट जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं खोलने की. Thank you, sir. Taking the privilege of ending on that extremely positive note, I would like to thank each one of you. Thank you very much. इतना अच्छा एक पैनल डिस्कशन किया, that you have filled me with so much positivity, and I'm already looking forward towards January 2021 and meeting you all in your physical self. So thank you each one of you for giving us this time, for coming onto our platform, and in this unprecedented event, we wish for this to become an example for every year to come. Thank you very much, and grateful to you all of you for being here, and please join us